Hi friends, Jai Hind. This is Major Praveen Singh, Director Cardinal Warriors, Military School with Josh or Hosh. I welcome you all for this presentation on career guidance. But before that, I like to give you some information about Rashtriya Indian Military College, Sainik schools, military schools, and private military schools. What happens is we get a lot of inquiry from the parents as well as students who want to know the basic difference between it. Well, we'll start with the best one, RIMC or Rashtriya Indian Military College. Before independence, Rashtriya Indian Military College was called as Royal Indian Military College. This was converted after independence into RIMC, and this was the first Sainik school or first military school that was operated by Ministry of Defense. Till date, they gave 100%, almost 100% cadets going to NDA are from RIMC, or in other words, all the person who are studying in RIMC are sure shot going to get into NDA. That is a popular belief. The entrance examination for RIMC is conducted twice a year. That is, they got the batch of 25 each, one starting in January and one starting in July. There are one seat per state. The person who are appearing for the entrance examinations, they get admission in class 6th once in either in January batch or the July batch, and there is only one seat per state. So the raw material which are going there are good, are the best in the state, and that's why the good results as far as the UPSC examination followed by the Service Selection Board interview for joining the NDA. Second is the Sainik schools, which are run by the Sainik School Society. They are about 35 in number, and these schools are basically a partnership between center and state, in which the fees are quite subsidized. They also take admission based on the entrance examination, and all those students who qualify for this Sainik schools, though they go and take their uh, admissions in the Sainik school to pursue a career in armed forces. The success rate of students from Sainik school is approximately 16 to 20%. It varies from year to year, but approximately between 16 to 20% of the students from the Sainik school do join National Defense Academy as officer to become officer in Army, Navy, or Air Force. Third comes the military school. They are total five in number. They also do have an entrance examination, and they are at Jail, Bangalore, Dholpur, and two more places. So these military schools are also defense sponsored schools, and they also have an entrance examination. Then come the private military schools. Private military schools, as you see, like in the state of Maharashtra, they have got one per district. Approximately 36 private military schools are operating in state of Maharashtra, of which two are exclusively for girls, one of them being at Pune, and another one at Nasik, which is specifically only for girls. Now, recently, the doors of Sainik School as well as NDA has been opened for the girl cadets also. This is a very heartening change which has been done very recently. And now girls can also study at Sainik School and can also opt for a career in armed forces through NDA. So this is all about the Sainik schools and other private Sainik schools. You must have heard about the Amity University, Amity Sainik School, which is being run at Manesar. There are few other Sainik schools like we are running Cardinal Warrior Military School. It is a private venture. Aim and the routine and the things which are common in all these schools is that we basically train the students in military training. And then the question is, what is military training? Military training is basically making a student or cadet believe in themselves. We make them go through certain routines through which we make them believe that they can do anything. And any bottlenecks or anything which they feel they cannot do in their life, they have got fear of heights, or they have got fear of speaking in public. These all fears are being handled and tackled by giving them adequate opportunities to overcome these fears, and that gives them the confidence. And not only for military careers, they become groomed up for any career in life, may it be public sector, private sector, government jobs, or MBA, IT managers.
So this is the basic intention of the Sainik schools or military schools, and the concept as shown in the slide is physically fit, mentally alert, and morally straight. That means we make them exercise, we make them play games and sports, so that there is a spirit of camaraderie, spirit of sportsmanship. They learn how to win, and they also learn how to lose graciously. So this is all part of game, and winning and losing is part of life. But they have to be graceful in winning and as well as while you are losing. So this is the basic parameters which a Sainik school does something extra apart from academics like in other schools. We train them in all types of games and sports, swimming, shooting, horse riding, etc. So with this backdrop, let's start with the career counseling seminar, in which I will be not only touching upon the career in armed forces, but other careers as well for students who are pursuing arts, commerce, science, or any other career which they want to pursue. I'll be briefly touching upon all the career options available and the way to go, way to decide your career, or the ways and means you must opt for to decide upon which career is good, which career is suited for you, and you should make your decisions wisely. Before you decide your career, firstly you have to identify who you are. सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ये हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी प्रकार हमारी किसी की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती है. यू माइट मेक ए रॉन्ग डिसीजन कि आपको फौज में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, बट यू माइट नॉट बी फिट फॉर इट फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली. सो फर्स्टली यू हैव टू मेक एन असेसमेंट अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपके इनेट क्वालिटीज क्या हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपका ब्रांड ऑफ माइंड क्या है. जैसा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, हर आदमी के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, एंड दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. और ये एज ए एजुकेटर्स और एज ए टीचर्स हमारा फर्ज होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, ग्रूम करें और उनके स्ट्रेंथ को और डेवलप करें, सो दैट जो उनका अंदर का इनर या इनबॉर्न टैलेंट या हर आदमी के अंदर जो एक खासूसियत होती है उसको हम संवारें, निखारें और उसको एक उसी हिसाब से कैरियर के लिए गाइड करें जो कि उसके लिए बेस्ट सूटेड हो. तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करें कि आप एक्चुअली किस चीज में बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं. मतलब क्या आपकी ऐसी क्वालिटी है जो कि सबसे बेस्ट है, आपकी सबसे डोमिनेटिंग ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है. उसको हमको आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. This is the Guru Mantra. If you are looking for a career in the armed forces, this is the Guru Mantra. Your thoughts, words, and deeds have to be the same. Your thoughts become your karma becomes your habits, and habits decide your destiny. इसका बेसिकली मैं आपको बहुत शॉर्ट में अभी बता दूंगा कि जब भी आप फौज के लिए जाते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशंस देते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, व्हिच इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड टफेस्ट इंटरव्यू. इट इज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 days, जिसमें आपको साइकोलॉजिकली, दैट इज योर थॉट्स, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज योर वर्ड्स, एंड जीटीओ टास्क जो कि ग्राउंड पे कराए जाते हैं, दैट इज योर एक्शन और योर कर्मा. तो थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स तीनों को देखा जाता है, और यदि कहीं कोई एम्बिग्विटी मिलती है तो यू गेट रिजेक्टेड. बट इफ यू बी योर सेल्फ, आप वहां जाते हैं, झूठ नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल जैसे हैं उसी तरीके से नॉर्मली आप इंटरव्यू देते हैं, तो देयर आर चांसेस यू might get selected in their service selection board interview. So the Guru Mantra basically remains: thoughts, words, and deeds must be the same. Now coming to what is career. Career basically, as Oxford Dictionary defines it, is person's course or a process or progress through life. For example, it pertains to gaining some professional knowledge, starting from your school days to your college days, then getting into a profession, training, additional trainings. For example, any person who is joining the army may be trained on short arms, small arms, guns, tanks. Person joining the Air Force might be flying the aircrafts, and those joining the Navy might be working on how to run a ship. So it is a process of gaining skills and developing your skills and sharpening your skills to progress in your life.
Basically, this is a continuous process of gaining knowledge, starting from your school days till you join a career, and even during the career, you keep on doing certain courses and developing certain skills, gaining knowledge, and improving your output as a professional in your life. So before we decide, before we see the process कि हमको अपने career चॉइस करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, लेट्स सी कि क्या क्या गलतियां जो है आमतौर पे लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो रॉन्ग कैरियर चॉइस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैरियर के दौरान दुखी रहते हैं या बार बार कैरियर चेंज करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि यूजुअली ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज और अर्ली इन लाइफ, स्टूडेंट्स डोंट प्लान फॉर देयर कैरियर, दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर. जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू उन्होंने जाना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि सडनली दे फाइंड देमसेल्फ कि कैरियर चॉइस करने का टाइम आ गया है, एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग द क्राउड. मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग ली है तो आई विल आल्सो टेक एन इंजीनियरिंग. मेरे दोस्त ने ऐसा किया है, इज गोइंग फॉर ए होटल मैनेजमेंट, सो आई आल्सो शुड गो फॉर ए होटल मैनेजमेंट, लीस्ट रियलाइजिंग दैट ही इज फिट फॉर सम अदर जॉब. एंड इसमें फिर क्या होता है कि आपको कई तरह के लोग मिलते हैं जो गाइड करते हैं, मे बी योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, फ्रेंड्स, और अड़ोस पड़ोस के आपके जानने वाले या रिलेटिव्स. इसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है कि यू स्टार्ट फॉलोइंग द करंट ट्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल कि कभी आईटी का बूम आता है, कभी इंजीनियरिंग का बूम आता है, एंड यू स्टार्ट ट्राइंग टू फॉलो दैट क्राउड कि ये आज की डेट में इन थिंग है, ये हैपनिंग थिंग है, ये कैरियर चॉइस करने से, ये कोर्स करने से मेरा कैरियर सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, in case you make a wrong career choice, you might become successful but you will not happy with that career, because जो आपकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, उसके हिसाब से अगर आपका कैरियर चॉइस होगा, if you follow your passion, you will be successful as well as happy in your life, because then work will be fun for you. So what happens? Once you have not prepared for your career, once you have not evaluated yourself, your strength and weaknesses, your focus is lost. What happens? You get lost in the very small crowd. आपका आज का एम होगा कि आज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, tomorrow you want to become an engineer, then an army officer, then a fighter pilot, and so on. So basically you are losing the focus. आपका जो efforts आपका डाल रहे हैं वो aimless हो जाता है. You start roaming like a misguided missile. कभी आप इस टारगेट पे जा रहे हैं, कभी आप उस टारगेट पे जा रहे हैं, एंड जो भी आपके एफर्ट्स डल रहे हैं, दैट इज नॉट इन ए सिंगल डायरेक्शन. Seeing the population growth and the competition which is going on for jobs as well as a career in professional world, it is very very much important that ki you start preparing for it early, start identifying your strength and weaknesses early in your life, and be very focused, and your preparation should go on from very very early in your life, and your decisions has to be made quite early in your life, and later part you might keep on evaluating it, correcting it, but the assessment about your career has to start now. So here we see whom we can blame it. So starting from students, parents, teachers, schools and colleges, society, government, whosoever has the knowledge, and people who influence others without proper scientific process, following proper scientific process. But this blame game won't help you. What can help you is your own determination, your own knowledge. You have to understand that firstly, the process, okay, how to go about identifying the best course of action which is suited for you, and adopting it, and continuously evaluating your decisions, so that you plan your career accordingly and you reach the destination which is made for you. So let's find out the answer to this. What to do then? आगे क्या करें? So after schooling and graduation, what do you want to actually do with your life? This is a very important question. Why? Let's see in the next slide. So whatever career you select, that is very important for you. Why it is so important? Firstly, because you are created unique. आप जो है एकदम unique है, जैसे कि फिंगरप्रिंट होती है. एक जिंदगी आपको मिली है, आपको बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी. एंड ऑलमोस्ट 40 years ऑफ योर लाइफ आप काम के ऊपर गुजारेंगे. स्कूल कॉलेजेस आपके 20 साल 21 साल में खत्म हो जाते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ योर 40 years ऑफ योर लाइफ बिफोर यू रिटायर, यू स्पेंड अबाउट 80,000 hours on work. तो ये 80,000 hours
जो है बिफोर यू रिटायर और यू डाई इज व्हाट यू विल बी डूइंग। इसलिए कैरियर चॉइस जो करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 1/3 ऑफ योर लाइफ will depend will be spent on doing whatever career you have chosen. Now coming to how to make correct decision making as far as your career is concerned. तो जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है डिस्कवरिंग योरसेल्फ। हाउ डू यू डिस्कवर योरसेल्फ, इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगा। देयर आर मेनी साइंटिफिक टेक्निक्स, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जिसके द्वारा आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का असेसमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड यू आर सुटेड किस कैरियर के लिए आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा सूटेड है, किस कैरियर के लिए आपके अंदर टैलेंट है या लेटेंट इनबॉर्न कैपेबिलिटीज हैं। वंस यू आर डन विथ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, यू नो कि आपके अंदर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि इसके मेरे जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, मेरी जो पर्सनालिटी है, वो उसके लायक कौन कौन से कैरियर हैं। then you come to a decision, you make a decision कि yes I want this career, as I want to opt for this career। मेरी जो लाइफ है, नेक्स्ट जो जिंदगी है, वो इस कैरियर के लिए समर्पित रहेगी। then you take action means you start giving examinations, you start preparing for the examination, start giving the examination, results आते हैं, आपको feedback मिलता है कि भाई you are able, आप कहाँ, आप कितने पानी में हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, यू फाइंड कि आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हैं, 2 अटेम्प्ट निकल चुके हैं, देन यू हैव टू इवेल्युएट योर डिसीजन। कई बार होता है कि यू मेक ए डिसीजन, आई विल नॉट रेस्ट्रिक्ट यू कि आप जो है बेस्ट कैरियर चॉइस के लिए जाइए, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट, प्रिपेयर योर बेस्ट, पूरे एफर्ट्स लगाइए। और इन केस यू आर नॉट अप टू द मार्क, या आपको लग रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, देर आर वेज एंड मीन्स, आप अपना इवेल्युएट कीजिए डिसीजन को। देयर माइट बी सेकंड कैरियर ऑप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल, यदि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या नेशनल सर्विसेज में नहीं निकाल पा रहे हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स नहीं निकाल पा रहे हैं, देयर आर मेनी अदर कॉम्पिटिशन्स विच आर एट state level for the banking jobs, for if you are not able to get into the army, there are many other options like CAPFs, पुलिस, CISF, SSB। तो इस तरह के कई आपके पास में सेकेंडरी ऑप्शंस होते हैं, उसको भी आपको पैरेलली एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में भी आपने अवेयर रहना है। और यदि आप अपने मन से तैयारी करेंगे, पूरी मन से एफर्ट्स डालेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू make a career which will give you success as well as happiness in your life. Coming to the process to be followed for making a right career choice or decision. The step one is discovering yourself. Like I told you, सबसे पहले आपको अपने आप को डिस्कवर करना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है, पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस चीज में मेरे को बहुत मजा आता है, क्या क्या चीज मैं एंजॉय करता हूँ, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं। और अगर इस हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊं या एयरफोर्स का पायलट बनूं, तो मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने होंगे। फॉर एग्जांपल, एनडीए के एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर मैंडेटरी। सो यदि आप अपना डिस्कवर करते हैं, अपने कैरियर चॉइस राइट टाइम पे लेते हैं, तो आप कहीं फंसते नहीं। Otherwise, what will happen at once you reach class 12th and you go for filling the NDA form and you will find कि मेरे को तो मैथमेटिक्स लेना चाहिए था, now I am ready studying commerce। So what happens कि आप फिर ग्रेजुएशन के बाद, यदि कॉमर्स स्टूडेंट हैं, still you can join the armed forces, but after graduation through CDS एग्जामिनेशन और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो कैरियर चॉइसेस हैं, उसको स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो अप करना है और जो डिसीजंस लेने हैं बहुत जल्दी लाइफ में लेने हैं। अदरवाइज यू विल बी फाइंड वांटिंग कि आप बने किसी कैरियर के लिए हैं और आप जो नौकरी कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या जो कैरियर चॉइस आपने की है, किसी और सर्विस में आप फंस गए हैं। तो इसको, इस सिचुएशन को कहा जाता है राउंड पेग इन स्क्वायर होल्स। मतलब जो स्क्वायर होल है, उसमें एक राउंड पेग यदि आप फिट करेंगे तो उसमें फिट नहीं आएगा। सो इफ यू वांट टू फिट इन द राइट कैरियर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, तो उसका डिसीजन जल्दी लीजिए। स्टेप्स जो फॉलो करने हैं, पहला स्टेप इज डिस्कवरिंग योरसेल्फ। इसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस और साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है, एक करियर काउंसलर से मिला जाता है, और इस टेस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और वंस वी फिनिश दिस प्रेजेंटेशन, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप करियर गाइडेंस या उसकी काउंसलिंग मेरे से करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी डे टू कम टू कार्डिनल वॉरियर्स स्कूल विद जोश एंड होश। और वहां पे मैं आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके आई कैन गाइड यू फर्दर।
नाउ दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ, आपने साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर ली, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस मालूम है, आपके लिए कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं वो भी आपको बता दिया गया है करियर काउंसलर के थ्रू। तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देन इट स्टार्ट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस, कि मेरे लिए जो जो करियर ऑप्शंस बताए गए हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लूँ। ये आप जानकारी कई तरह से ले सकते हैं, आपके रिलेशन में, आपके परिचित में कोई भी उस करियर से रिलेटेड यदि व्यक्ति है तो उससे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाउअडेज एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेब, आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन लेना या रिट्रीव करना, उसके बारे में पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा आज के समाज में, आज के टाइम में टफ नहीं है। तो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस कि मेरे लिए जो जो करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके लिए आपने एक प्रॉपर स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, और उसके बाद आपने कोई डिसीजन के ऊपर पहुंचना है। नाउ कम्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें आपने अपने आप को इवेलुएट किया, उसके बाद अपने अवेलेबल ऑप्शंस को एनालाइज किया, उसके बारे में आपने काफी स्टडी की, समझा, लोगों से बात की। नाउ देयर इज अ टाइम दैट यू हैव टू कम टू अ डिसीजन। तो डिसीजन लेने से लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो आपने ध्यान में रखना है, कि कितना टाइम और एनर्जी मैं इसमें डाल सकता हूँ, कितना मैं अपने करियर के लिए सीरियस हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग टू करियर इन आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, Indian police services, तो that requires a lot of preparation, and because इसमें competition बहुत tough है, you have to be the best, one of the best to get into this competition। और इसके लिए efforts जो मैंने देखे हैं अपने हॉस्टल में और अपने यूनिवर्सिटी में, people are studying more than 18 hours a day, and that also for a period of 1 year, 2 year, 3 year, till the time they succeed। तो वैसा determination, वैसा courage क्या मेरे अंदर है? तो इसको आप सेल्फ इवेलुएट कीजिए, डिसाइड कीजिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। क्या उतना टाइम, एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस करने के लिए आप तैयार हैं? और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मेरा कौन सा कैरियर मैं चूज करूंगा, किस कैरियर के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, और उसके लिए मेरे को क्या क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मेरे को कहाँ से कोचिंग मिल सकती है, कहाँ से गाइडेंस मिल सकता है, कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, एंड अकॉर्डिंगली यू मेक योर डिसीजन। The life is yours, career is yours, so decision has to be yours। A career counselor or a guide or a teacher or a parent or a friend, anyone can give you the guidance, but finally the decision जो है वो आपका अपना होना चाहिए। You have to take ownership, और उस decision के हिसाब से आपने अपना career का choice करना चाहिए। Now that you have discovered your talents or capabilities, you have done a research, you have decided about your career, comes the step start taking action। इसमें एक्शन में आपने सबसे पहले देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है उसके लिए मेरी रेडीनेस कितनी है, क्या मेरे को कहाँ कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ मेरे को मेहनत करने की जरूरत है टू रीच माई गोल, एंड व्हाट एक्शन शुड आई स्टार्ट राइट नाउ। कि मेरी स्पोकन इंग्लिश यदि कमजोर है, हाउ हाउ डू आई गो वर्क ऑन इट, हाउ डू आई इम्प्रूव ऑन इट। मेरे को अगर करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से रूट्स हैं जिसको मैं फॉलो करूं। मेरा अगर माइंडसेट, इफ आई एम गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, माइंडसेट प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को किस तरह के न्यूज़पेपर या चैनल्स देखने चाहिए। करंट अफेयर्स के टॉपिक पे ओपिनियन मेकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कैसे उसको कर सकूं। लेक्चर डिलीवरी या ग्रुप डिस्कशन में मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा बोलने का तरीका है, द वे आई पुट अक्रॉस माय पॉइंट्स इन वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, ये सब चीजों को सीखने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, और अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपने आर्म्ड फोर्सेस का कैरियर चूज किया है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं कैसे अपने फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करूं, कैसे मैं अपने साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड को ट्रेन करूं फॉर दैट कैरियर। तो ये सब जो एक्शंस हैं ये लेने का समय आता है, दैट इज द स्टेप 4। आफ्टर डिसाइडिंग कि कौन सा मेरा करियर है, आप उस करियर के बारे में सोचने शुरू करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और अपने आप को मेंटली, फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं फॉर दैट करियर। स्टेप 5 इज री इवेल्युएटिंग योर डिसीजन। नाउ यू हैड डिसाइडेड कि आपने क्या कैरियर लेना है, आपने उसकी तैयारी की, अपना एग्जाम्स दिए, आपको फीडबैक मिलता है, आपको एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, यू सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग, आपकी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, आप उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी फिर से शुरू करते हैं, पूरी मेहनत से, पूरे जोश से एंड डिटर्मिनेशन से। बट यू हैव टू री इवेल्युएट कि यस, आई एम शूटिंग फॉर द स्टार,
बट यदि मैं स्टार तक नहीं पहुंचा, एटलीस्ट आई शुड रीच टिल द मून। सो आपके सेकंड ऑप्शंस क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल, यदि आप नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशंस में आपको लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी टफ एंड यू माइट मेक इट, यू माइट नॉट मेक इट, तो देर आर सेकंड ऑप्शंस लाइक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज या वेब के ऊपर आप और भी ऑप्शंस साथ ही साथ एक्सप्लोर करते रहिए, उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, और उसके लिए भी प्रिपरेशंस जारी रखिए, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ऐसा ना हो कि आप गोल बहुत स्मॉल मार्जिन से मिस कर जाएं एंड टाइम ओवर हो जाए, आप दूसरे ऑप्शंस के लिए, आपकी एज ओवर हो जाए, दूसरे ऑप्शंस के लिए आप इनएलिजिबल हो जाए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं अपने करियर के बारे में, उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो एक स्टेप ऐसा भी रखना चाहिए जिसमें आप लगातार फीडबैक के हिसाब से रिवैल्यूएट करते रहिए और भी करियर ऑप्शंस के बारे में ध्यान देते रहिए और उसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। ब्रीफली आपको कैरियर साइकिल के बारे में बताऊंगा, जिसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में या करियर में प्रोग्रेस करते हैं। फर्स्टली, जो अभी आपका प्लान है उसमें बहुत ज्यादा परसिवरेंस या लगातार उसमें बिलीव करना और उसके पीछे लगे रहना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये आपको जो सेल्फ बिलीफ है कि यस आई कैन मेक इट, उसको आपको डिटर नहीं होने देना है, उसको आपने डाउन नहीं होने देना है, और अपने कमिटमेंट के साथ यू हैव टू कीप मेकिंग एफर्ट्स till you succeed. So how do we reach the decision of career choice? तो बेसिकली यदि इसको हम सम अप करें, तो जो भी आपकी एबिलिटीज हैं या आपके एप्टीट्यूड हैं या इनबॉर्न क्वालिटीज हैं, इंटरेस्ट हैं, इसको अगर हम आपकी पर्सनालिटी से जोड़ दें, आपके मोटिवेशन से कि क्या चीज आपको मोटिवेट करता है या अच्छा लगता है, तो दैट sum total of all these attributes gives you the correct career choice. कैरियर साइकिल पार्ट 2, इसमें बेसिकली जो आपका सेल्फ है, जो आप एक्चुअली हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके साथ साथ यदि आपको मिक्सचर किया जाए कि जो एजुकेशन आपने लिया, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने एजुकेशन लिया, स्कूलिंग किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है और कैसे सोसाइटी के इन्फ्लुएंस हैं, और इसके साथ साथ आपका लाइफ में विजन क्या है, इसके हिसाब से आपका जो करियर का प्रोग्रेशन होता है और करियर आगे किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिसाइड होता है। टू सम अप, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी एम्बिशंस और रियलिटीज में डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं। आपका मन है कुछ बनने का, बट रियलिटी ये है कि यू आर नॉट केपेबल इनफ या यू आर शॉर्ट ऑफ व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट करियर। तो ये डिसीजन जो लेने से पहले आपने बहुत टाइम डालना है, बहुत ज्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस, और एम्बिशंस क्या है कि कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोप नहीं सकता, और इसमें पेरेंट्स का भी हेल्प चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि टू हेल्प द चाइल्ड डिसाइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इतने सारे डाइवर्शंस रहते हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के आइडियाज, अलग अलग तरह के गाइडेंस उनको मिलते हैं, इसलिए उनको बहुत केयरफुली पेरेंट्स ने भी गाइड करना है और उनको सही कैरियर चॉइस लेने में हेल्प करना है। नाउ कमिंग टू द साइकोमेट्रिक टेस्ट, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि नो योरसेल्फ, तो ये टेस्ट आपको अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस और कौन से कैरियर आपके लिए बेस्ट सूटेड है बताने के लिए साइंटिफिक टेस्ट है। ये टेस्ट में बेसिकली न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग, कंसंट्रेशन, मैकेनिकल कंप्रिहेंशन एंड कुछ चेकिंग टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके हिसाब से एक रिजल्ट निकलता है। इस टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के करियर काउंसलर के साथ यदि आप बैठते हैं तो ही इज एबल टू एडवाइज व्हाट आर द बेस्ट suited कैरियर ऑप्शन एज पर योर कैपेबिलिटीज। इसमें कुल 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में आपको देखा जाता है और तब आपको डिसाइड करके बताया जाता है कि कौन से कैरियर आपके लिए बेस्ट suited है। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये फॉलोइंग जो आप मैंने बताया था 16 पॉइंट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके हिसाब से आपका इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रीजनिंग में आप लेस इंटेलिजेंट हैं या मोर इंटेलिजेंट हैं, प्राइवेटनेस में आप कैसे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, श्रूड हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये आपकी एकदम क्लियर कट पर्सनालिटी या आपका कच्चा चिट्ठा दे देते हैं और उसके हिसाब से हमको बहुत हेल्प मिलती है कि इस बंदे के लिए कौन सा कैरियर
चॉइस जो है ये बेस्ट होगा एज पर हिज पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेटिंग बंदा है कि हम्बल है, असर्टिव है। तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट आपको दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको कैरियर गाइडेंस दिया जाता है। इसके लिए एनी टाइम आप मोस्ट वेलकम है। कम टू द कार्डिनल वॉरियर स्कूल विद जोश एंड होश और मेरे से मिलें। ये टेस्ट मैं वहीं कंडक्ट करके रिजल्ट्स दे करके आपको प्रॉपरली कैरियर के लिए गाइड कर दूंगा। ये कुछ और क्वालिटीज लिस्टेड हैं कि जिसको हिसाब से हम बंदे को इवेलुएट करते हैं, उसकी विल कैसी है, ओपन माइंडेड है, रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज है कि नहीं, रिसोल्यूट है, डिटरमिन्ड है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है, एकोमोडेटिंग है, सेल्फलेस है कि परसुएसिव है, ठीक है, फ्री थिंकिंग है कि उसकी थिंकिंग जो है एकदम स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज इससे हमको पता चलती हैं। तो इस तरह से जो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट के ऊपर हम पहुंचते हैं या जो डिसीजन मेकिंग में बता रहा था आपका करेक्ट होना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करता है और बहुत हद तक आपका सही इवैल्यूएशन करके आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि कौन से कैरियर जो है आपके लिए बेस्ट हैं, जिसके साथ आप पूरी रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑलमोस्ट 40 इयर्स उस कैरियर में आप स्पेंड करेंगे। अगेन फ्यू मोर क्वालिटीज, फ्यू मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। ये सारी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट, इट इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक टेस्ट। जो आपको मैंने फौज के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बताया था, उसमें भी इसका साइकोलॉजी टेस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है और अकॉर्डिंगली वो जो साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि दैट पर्सन इज फिट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस और नॉट। उसी तरीके से यदि आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट कराते हैं या साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, बहुत सही डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप में से जितने लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, दे शुड कम एंड डू देयर पर्सनालिटी टेस्ट एंड देन डिसाइड अबाउट द कैरियर चॉइस। सो विद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्ट, प्रॉपर काउंसलिंग, ये जो डिलेमा आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये डिलेमा आप अवॉइड कर सकते हैं एंड यू कैन रीच द राइट डिसीजन विच कैरियर चॉइस, विच कैरियर इज बेस्ट suited for your personality. Now I will take you through various career options, starting with the armed forces, army, navy and air force. तो armed forces में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं या जिनका मोटिवेशन इतना है कि वो armed forces ज्वाइन करना चाहते हैं, तो I will like to tell you about armed forces which is defined in this Chetwood principle. This is etched, this is written there on the parade ground of Indian Military Academy, Dehradun. The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of men you command comes next, always and every time. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. तो this is the basic Chetwood principle जिसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस का कैरियर को यदि आप नक्शल में कहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए मैन पावर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, HR इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे एज ए लीडर, एज ए कमांडर आपका जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट फॉलोड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल whom you command and your own interest, safety, welfare and comes last, always and every time. Now I will briefly touch upon the career options या आर्मी के जो options होते हैं for the officer cadre, not जवानों का जो भर्ती होता है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। I will only keep myself restricted to the officer cadre. तो उसके लिए क्या क्या आर्मी आपको ऑफर करती है, क्या उनका सिस्टम ऑफ सिलेक्शन होता है, तो इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय UPSC, आप उनकी वेबसाइट पे देखते रह सकते हैं। सारी एंट्रीज के एडवर्टीजमेंट, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल, ये सारी डिटेल्स जो आपके हैं वो उसमें पब्लिश होते हैं, उसको आप देखते रहिए। उसमें एज रेस्ट्रिक्शन होते हैं और भी जितने डिटेल्स हैं वो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। UPSC के द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन के बाद में ऑफिसर कैडर में जाने के लिए जो मैंने पहले आपको बताया था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, वो इंटरव्यू फेस करके आपको सिलेक्ट होना पड़ता है। आफ्टर दैट द मेडिकल्स होते हैं और मेडिकली फिट होने के बाद आप फोर्सेस ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो टाइप ऑफ एंट्रीज होती हैं, कुछ
वो इस तरह की होती हैं, कुछ यूपीएससी एंट्रीज होती हैं, कुछ नॉन यूपीएससी एंट्रीज होती हैं, और कुछ अदर एंट्रीज होती हैं जो कि इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद जेसीओज और जवान के प्रमोशन के लिए या ऑफिसर बनने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले होती है एनडीए, जो कि क्लास 12th के बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो उसके रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 3 या 4 दिन का इंटरव्यू होता है। इस प्रोसेस में सेलेक्ट होने के बाद जो सेलेक्ट होते हैं उन्हें रोक लिया जाता है और उनके मेडिकल एग्जामिनेशन करके फिर उनको ट्रेनिंग के लिए अगला जो भी ट्रेनिंग बैच हो रहा होता है उस ट्रेनिंग के बैच में ज्वाइन करा करके एनडीए के थ्रू आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज में जा सकते हैं। तो चूंकि क्लास 12th के बाद एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, इसलिए एनडीए के दौरान आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। सो यू बिकम ए ग्रेजुएट बिफोर ज्वाइनिंग रेस्पेक्टिव आर्म। आर्मी में जाना चाहते हैं तो आईएमए जाते हैं, नेवी वाले इंडियन नेवल एकेडमी जाते हैं, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं। इसके साथ ही आपके कुछ टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो होते हैं इसके लिए भी डायरेक्ट एंट्री होती है। आईएमए के लिए भी डायरेक्ट एंट्री होती है। 10+12 टीईएस स्कीम जो क्लास 12th के बाद में टेक्निकल एंट्री स्कीम में, इसमें डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज। तो इसके भी आपके नोटिफिकेशंस आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देखते रहें, और जब भी एग्जाम एंट्री निकलती है या इसकी वैकेंसीज निकलती हैं आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर परसेंटेज कट ऑफ जितना है उससे यदि आप ऊपर हैं तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री ये ग्रेजुएशन के बाद में होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें आप चाहे आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, सारे ग्रेजुएट्स जो हैं इसको एग्जाम दे सकते हैं। और सिमिलरली आफ्टर द यूपीएससी के जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू फॉलोड बाय द मेडिकल्स के बाद आप अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करके आर्म्ड फोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो अलग एक स्कीम होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था और मैंने परमानेंट कमीशन नहीं ऑप्ट किया और मैं बाहर आ गया, तो इसी तरीके से शॉर्ट सर्विस में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ एंट्रीज होती हैं। टेक्निकल वाले वो होते हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गया, या इंजीनियर्स या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। इन सब में वो टेक्निकल एंट्रीज के लोग जाते हैं, और नॉन टेक्निकल एंट्री वाले नॉन टेक्निकल फील्ड्स में या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी के जो भी कैडेट्स होते हैं उनके लिए भी स्कीम होती है कि वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू करके क्लियर करके डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेज में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। लिव ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, डू यू हैव इट इन यू। इसके ऊपर एक प्रमोशनल What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. I'm a doctor, but my stethoscope comes with a parachute.
I'll do anything to save a life. Jumping helicopters, climbing mountains, dangling midair. Anything. Do I get scared? Not easily. But my biggest fear is not getting there in time. Flying through the sky, protecting the ones who protect you. Guess that makes me a superhero. Just saying. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The most advanced technology firm in India also happens to be the country's best construction company. And its biggest logistics operator. It is India's first cellular enterprise. India's finest hospital group. Oh, and before we forget, India's largest network of educational institutions. One of the 10 largest employers in the world. Over 1.2 million colleagues. More than 20 diverse career disciplines. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. Right from childhood I knew I was a born leader. And my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free-fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं, दैट इज फॉर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये दोनों ही एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है सीडीएस और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड जैसा मैंने बताया, प्रोसेस रिमेन्स द सेम। क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, गो फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, क्वालिफाई इट, एंड मेडिकल्स में आप जब फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, देन यू गो टू ट्रेनिंग, यू गो फॉर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करके यू बिकम कमीशन्ड ऑफिसर। आर्म्ड फोर्सेस के सर्विस में ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि बाकी सर्विसेज में आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं, गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है, बट सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्सेज में you become a commissioned officer. That is, your parchment is signed by the President of India, and your loyalty and devotion is towards the President of India, not towards the elected government. You are the protector of the democracy. सेकेंड जो होते हैं परमानेंट कमीशन के, वो बच्चे जो एनडीए के थ्रू जाते हैं, ऑल ऑफ देम गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। 3 साल का उनका ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद वो रेस्पेक्टिव आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एकेडमी में जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने रेस्पेक्टिव कैरियर में प्रोग्रेशन करते हैं। आईएमए ज्वाइन करने के लिए सीडीएस एग्जामिनेशन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। टीएस एंट्री स्कीम, इसमें बेसिकली यदि आप 70% से ज़्यादा हैं क्लास 12th में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आपको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आ सकता है। इस ट्रेनिंग इसमें आईएमए में कराई जाती है, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद में यू गो फॉर इंजीनियरिंग, दैट कैन बी एट सीएमई, एमसीईएमई और एमसीटीई। यहाँ पे आप शॉर्ट सर्विस का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में 70% एंड अबाउ इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ दे कम अबाउ द कट ऑफ, दे आर कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू, and after medicals they can join basic training at IMA and further engineering course along with the training at respective engineering colleges of armed forces.
जिस तरह से TES एंट्री क्लास 12th के बच्चों के लिए होती है, उसी तरीके से टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन भी होता है, जो कि फाइनल ईयर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल, SSB मेडिकल, एंड दे आफ्टर द ट्रेनिंग दे डू द इंजीनियरिंग इन द आर्म्ड फोर्सेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, इसमें डायरेक्ट कमांड के लोग आते हैं कॉलेजेस से, जो कैंपस सिलेक्शन की तरह से बच्चे सेलेक्ट करते हैं, और उनके SSB एंड मेडिकल के बाद में दे डू द ट्रेनिंग एट IIMA फॉलोड बाय ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग एट मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कमिंग टू शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक बार यहाँ पे मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए परमानेंट कमीशन, जो NDA के कैडेट्स जाते हैं या MA के डायरेक्ट एंट्री कैडेट्स जाते हैं, वो परमानेंट कमीशन वाले होते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन वो मैक्सिमम 10 इयर्स की सर्विस कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, सर्विस कंडीशंस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं, दे बेसिकली डू द कंप्लीट टेन्योर ऑफ देयर सर्विस टिल दे रिटायर, और उनको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं, मे बी 10 इयर्स का टेन्योर करते हैं, दे कम आउट यंग, और इनके लिए सेकेंड कैरियर ऑप्शंस कॉर्पोरेट्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में ओपन रहता है, या दे कैन अगेन शिफ्ट टू एनी अदर कैरियर इन सिविल लाइफ लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और दे कैन डू MBA एंड look for second career options. But permanent commission जो officer होते हैं, they complete their service as per the service norms. Short service commission, they come out after 10 years. But short service commission officers are asked, जो उनका कमीशन का टाइम खत्म होता है, तो उससे पहले उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आप बाहर जाना चाहते हैं या परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं। तो जो लोग अपना परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड, जिनके परफॉर्मेंस आर गुड, दे गेट द परमानेंट कमीशन एंड दे कंटिन्यू इन द सर्विस एज परमानेंट कमीशन ऑफिसर विद ए IC नंबर। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, उनका जो सर्विस नंबर होता है, दैट स्टार्ट्स विद SS, दैट सिग्निफाइज short service commission, and this is the basic difference between a permanent commission officer and a short service commission officer. Coming to short service, इसकी ट्रेनिंग जो होती है OTA चेन्नई में और OTA गया में होती है। जो इसके नॉन टेक्निकल एंट्री होती है, नॉन टेक्निकल एंट्री जैसे मैंने बताया BA, BCom, BSc, BCA, ये ग्रेजुएट्स भी आर्म्ड फोर्सेज में जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और इसके लिए उनको रिटन टेस्ट UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है CDS या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करना, मेडिकल टेस्ट क्लियर करना, क्वालिफाई करना, ट्रेनिंग करना एंड सर्विसेज ज्वाइन करना। जबकि SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें मैन और वुमेन ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, BE और BTech के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, जस्ट लाइक US एंट्री और TS एंट्री, और ये डायरेक्टली SSB के लिए आते हैं, मेडिकल क्लियर करके, ट्रेनिंग कंप्लीट करके और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दे कैन ज्वाइन एज द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। कमिंग टू शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC के जो भी कैडेट्स C सर्टिफिकेट B ग्रेड से पास हैं और एटलीस्ट 50% जिनके ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन में है उनके नंबर्स, वो डायरेक्टली SSB क्लियर करके ऑफिसर बन सकते हैं। जैग एंट्री स्कीम होती है, जिसमें 55% एंड अबाउ जो 3 इयर्स का LLB किए हैं उनके लिए, या 5 ईयर का जो LLB कोर्स किए हुए हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, वो इसमें क्वालिफाई करने के बाद, SSB मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें जो स्लाइड में भी मेंशन नहीं है, एक और होती है आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर, जिसका अलग से एग्जामिनेशन AMC का लिया जाता है। जैसे आपके नीट एग्जामिनेशन होते हैं, एम्स के एग्जामिनेशन होते हैं, AMC का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको क्लियर करने के बाद AMC पुणे से MBBS करके डॉक्टर्स बनते हैं, जो कि आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में जो मेडिकल ब्रांच है आर्म फोर्सेस की, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग टाइम, कब कब इनके UPSC के वेबसाइट में आपने ध्यान देना चाहिए कि कब कब इसकी एंट्रीज फ्लैश होती हैं। NDA की मार्च और अक्टूबर में, TS की मई एंड सितंबर में, IMA डायरेक्टर एंट्री की अप्रैल एंड सितंबर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल की अप्रैल एंड सितंबर में, NCC की जनवरी एंड दिसंबर में। ये टाइमलाइन आपको याद रखने की जरूरत है,
और यूपीएससी की वेबसाइट पे यदि आप रेगुलरली नज़र रखते हैं तो जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकते हैं। साथ ही आजकल गूगल में ऑप्शन है कि इसमें यदि आप किसी वैकेंसी से रिलेटेड अलर्ट्स डालते हैं तो डायरेक्टली आपके ईमेल के ऊपर भी आपको किसी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड या किसी भी सर्विस से रिलेटेड वैकेंसीज निकलने पे अलर्ट्स ऑटोमेटिकली आपके ईमेल के ऊपर आते रहेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसएसबी के बारे में मैं बता चुका हूँ। बेसिकली मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन हो चाहे सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, हाउ शुड यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सबसे पहली बात, इसमें जो पेपर्स होते हैं दैट नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्लास 10+2 मतलब क्लास 12th का मैथमेटिक्स और फिजिक्स आता है, तो थोड़ा टफ होता है। और इसके अलावा आपका इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। इंग्लिश के लिए आप बेसिकली रेन एंड मार्टिन, यदि इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। स्टिल रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की जो बुक है उससे लेकर के आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, जो कि आपको जनरल आइडिया दे देंगे कि पेपर किस तरह के आते हैं और उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। कमिंग टू जनरल स्टडीज में ये है ऑप्शन बहुत ओपन रहता है। इसमें बेसिकली स्टडी आपको करना है एनसीईआरटी की बुक्स जो आपकी क्लास 6 से लेकर के 10 तक की हैं, उसको आप लेकर के उसके नोट्स बनाइए, उसको स्टडी कीजिए। 50% ऑफ द क्वेश्चंस, 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस एनसीईआरटी की बुक्स में या क्लास 6 से 10 तक के सिलेबस में ही मिल जाएंगे। रही बात बाकी 50% या 60% के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे हो सकता है, पॉलिटिक्स पे हो सकता है, लोगों के अचीवमेंट्स पे हो सकता है, अवार्ड्स के ऊपर हो सकता है। सो फॉर दिस यू हैव टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट। डेली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, डेली आप अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखिए जिसमें प्राइम टाइम शो जो होता है जिसमें दुनिया भर की खबरें आती हैं, जिसमें खबरों के साथ साथ आपका एक ओपिनियन बिल्डिंग किया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यदि आप बहुत अच्छे से जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स इसकी तैयारी करते हैं तो ये तैयारी आपके इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन के दौरान, लेक्चरेट के दौरान और इवन इंटरव्यू के दौरान आपके बहुत काम आता है। सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन का आप करते हैं उसमें जो मैथमेटिक्स आती है उसका लेवल क्लास 10 तक का रहता है, बिकॉज इसमें बीए, बीकॉम, बीसीए एंड बीएससी इस तरह के जो लोग हैं वो आते हैं जो कि बेसिकली नॉन साइंस स्ट्रीम से होते हैं। तो इसलिए सीडीएस एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है उसकी जो लेवल होती है दैट इज टिल क्लास 10th। तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका यदि आप फॉलो करते हैं तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल। सेल्फ स्टडी करके आप अपना एनडीए हो या सीडीएस का एग्जामिनेशन का तैयारी घर से ही कर सकते हैं एंड यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक कोचिंग फॉर इट। So that's all as far as career in armed forces is concerned. Now I will briefly touch upon, बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन काफी लंबा हो गया है, बहुत जल्दी मैं टेस्ट आपको का प्रेजेंटेशन में आगे ले जाऊंगा कि और जो फील्ड्स हैं फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड साइंस में, उसमें आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये इसके बारे में ब्रीफली मैं टच करूंगा। कि जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आप इंग्लिश ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल स्टडीज, मॉडर्न लैंग्वेजेस, रिलीजियस स्टडीज, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। तो ये सब कुछ एक ऑप्शंस हैं जो कि आर्ट्स वालों के लिए अवेलेबल होते हैं। ये स्ट्रीम्स हैं, ये फैकल्टीज हैं जिसको आप आर्ट्स वाले लोग परस्यू कर सकते हैं। व्हाट आर द स्कोप्स फॉर द पीपल हु आर डूइंग बीए या जो अपना आर्ट्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स की स्ट्रीम या फैकल्टी लेके पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या आगे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। बीए करने वालों के लिए आर्ट्स के साथ में ये सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं जिसमें वो बीए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, एक्चुरियल साइंसेज, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनोमेट्रिक्स, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स विद पब्लिक फाइनेंस। आर्ट्स लेने के बाद में आपके जो कैरियर चॉइसेस होते हैं वो आप एज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर, कई ऐसे ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ
सिंस यू बिकम ए ग्रेजुएट आपके पास सारे अदर ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, CDS एग्जामिनेशन के थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेज में आफ्टर ग्रेजुएशन या BA के बाद में रिटन एग्जामिनेशन निकाल करके आप वहां पे भी एक करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी कई वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट की होती है, और एज ए BA ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दोज वैकेंसीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप किस जॉब के लिए सूटेड हैं, किस जॉब कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट है, आपकी मेंटल फैकल्टीज कितनी शार्प हैं, ये देखने के लिए जो मैंने बताया था साइकोमेट्रिक टेस्ट करके यू हैव टू कम टू ए डिसीजन एंड देन यू परस्यू योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। आर्ट सब्जेक्ट वालों के लिए कुछ एक वोकेशनल कोर्सेज जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप apart from administrative services there are many other dimensions, scopes for people who are pursuing BA। सोशल वर्क में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पॉपुलेशन स्टडीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो जॉब पोर्टल है वो उनके लिए ओपन है, हेल्थ, साइकोलॉजी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फैकल्टी में। वंस यू आर डन योर ग्रेजुएशन एंड स्टडीज, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, बट यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आप किस जॉब के लिए या किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट सूटेड है। स्कोप आफ्टर कॉमर्स, कॉमर्स में जो BCom करते हैं उनके लिए क्या स्कोप है। BCom, BBA, BBM, ये इस तीनों फील्ड से जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं दे कैन टेक जो भी ये लिस्टेड यहाँ पे है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, ICWA, CA, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन रहते हैं। कॉमर्स वालों के लिए जो कैरियर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, एक्चुअरी हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और हायर स्टडीज में भी आप जा सकते हैं जैसे कि MCom, MBA, CA, CFA, ICWA, CS एक्सेट्रा। तो कॉमर्स के बाद में आपके पास कई ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस के सर्विसेज के CDS एग्जामिनेशन, जो कि मैंने शुरू में ही कवर किया था। कॉमर्स वाले कई वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉरेन ट्रेड, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आपके पास में कॉमर्स के बाद में जो भी फाइनेंस एंड फंडिंग या बैंकिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपके सर्विसेज हैं उसके लिए ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहे हायर स्टडीज में जाएं, चाहे वोकेशनल कोर्सेज करके अपनी स्पेशलाइजेशन या अपनी जो स्पेशलिटी है उसको इंक्रीज करके एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब ओरिएंटेड आप बन सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में यदि आप करियर बनाते हैं तो एक्चुअरी, बैंकर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। इस तरह के कई ऑप्शंस जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। इसके बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं, बहुत यंग लोग आज की डेट में इसमें बहुत अच्छा राइज कर रहे हैं और ये ऑप्शन भी वर्थ आपको देखने लायक है, इसके बारे में जानकारी लेने लायक है। स्कोप आफ्टर साइंस, PCM या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में आप जनरल BSc कोर्स कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, जियोलॉजी पे, स्टैटिस्टिक, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ड्रग एंड डाइज, ऑपरेशन रिसर्च, एनवायरमेंटल साइंसेस, हैवी एंड फाइन केमिकल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये कई ऑप्शंस हैं जो कि PCM वालों के लिए हैं और ये इस ऑप्शंस को अपने हायर स्टडीज में या अपने ग्रेजुएशन के दौरान इन फैकल्टीज को में अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो अपना परस्यू कर सकते हैं। कई डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आजकल आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस,
तो इस तरह के कुछ नए चीजें हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं और कहा जा रहा है कि फ्यूचर उनका होगा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे लिस्टेड हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बट मेन चीज जो आज की तारीख में स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने वाली है कि हमारे को जब आप करियर प्लानिंग करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर आल्सो। कल की डेट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आएंगी। नाउ यू आर लिसनिंग अबाउट कि ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आगे के जो कैरियर्स हैं अनस्किल्ड लोगों के लिए कैरियर चॉइसेस बहुत कम होंगी। एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये दीज आर द इन थिंग्स। ये चीजें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पिछले 100 सालों में हुई हैं उससे कहीं ज्यादा शायद अगले 10 सालों में होंगी। और आज की जो आपकी पढ़ाई है, लिखाई है, वो शुड बी जो उसका पूरा फोकस होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक क्या है, आगे करियर ऑप्शंस किस में आ रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब कोई ना जॉब होते थे, लेकिन आज की तारीख में दीज आर द इन थिंग्स, दीज आर द हैपनिंग थिंग्स। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द चेंजेस, और क्या फ्यूचर में चांसेस हैं आने का, उसके ऊपर आपका ध्यान और फोकस हमेशा बना रहना चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और जो फैकल्टीज हैं, एरोस्पेस इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये कई फील्ड्स हैं जो कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज, अपने बेंट ऑफ माइंड और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या जो साइंस स्ट्रीम से हैं, BArch करके MArch कर सकते हैं। दे कैन गेट आफ्टर दिस डिग्री कोर्स वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग करें, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, या एज ए पेड एम्प्लॉयज भी वो काम कर सकते हैं। इनका बेसिकली काम होता है जो बिल्डिंग है, नक्शे हैं, उसको डिजाइन करना, प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो जो भी सिविल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, तो उसकी डिजाइनिंग जो है 3D डिजाइनिंग इनके दिमाग में या कंप्यूटर के मदद से पहले बनाते हैं और एक्चुअली बाद में उसको ऑन ग्राउंड बनाया जाता है या सिविल इंजीनियर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। होम साइंस से रिलेटेड कोर्सेज, जो लोग होम साइंसेज लेते हैं उनके लिए क्लिनिकल, न्यूट्रिशनल, डाइटिशियंस, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस तरह के कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि वो चूज कर सकते हैं या परस्यू कर सकते हैं। After army, since I have been associated with education field, this is the very important aspect, क्योंकि किसी भी नेशन में, चाहे वो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हो, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, उनका बेसिक जो ग्रूमिंग होता है, उनका बेसिक फाउंडेशन होता है, वो एक टीचर के द्वारा डाला जाता है। सो टीचिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। इसमें आप प्राइमरी टीचर के कोर्सेज कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंसेज में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लस ये जो टीचर्स होते हैं, ये बेसिकली दे आर द वन हु आर क्रिएटिंग, हु आर टचिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन, जिनके कंधों पे पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी नोबल जॉब। और लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट। एवरी टीचर्स डे मैं अपने स्कूल में ये क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम ए टीचर, एंड गेस व्हाट रिस्पॉन्स आई गेट? नो वन रेजेस his or her hand. Very few people tell that they want to become a teacher. But actually what happens कि finally जब कहीं करियर में कोई ऑप्शन मिलता नहीं है तो you find them कि सारे के सारे टीचिंग जॉब में ही आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। It is a very noble profession. It is not the last profession कि अगर कहीं जॉब ना मिले तो हम टीचिंग करें। I understand कि it is very difficult, very unrewarding, but still a noble profession. इसका रिवॉर्ड्स आपको तब मिलता है जब आपका कोई स्टूडेंट कल की डेट में आगे बढ़ जाता है, कहीं पहुंच जाता है, कुछ बन जाता है, एंड वंस ही कम्स बैक टू यू एंड टेल्स यू दैट यू आर द टीचर हु टॉट मी, तो वो दिन जो होता है वो आपका एक्चुअल रिमनरेशन होता है, वो एक्चुअल आपका रिवॉर्ड होता है। यू फील प्राउड कि आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ये एक प्रोफेशन है जिसको अपार्ट फ्रॉम आर्म फोर्सेस आई फील कि वेरी नोबल प्रोफेशन है। इसमें भी आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड हो, बेंट ऑफ माइंड हो, एम्पैथी हो,
तो इस तरह के यदि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेंड ऑफ माइंड मिलता है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू टेक अप दिस कैरियर। हॉस्पिटैलिटी में एयर होस्टेस, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये इन थिंग्स हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है और आगे होगा, और इसमें भी कई कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऑफबीट कैरियर ऑप्शंस जो कि टैलेंट बेस्ड हैं: पेट ग्रूमिंग, हेयर स्टाइलिंग, एक्टिंग, वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, स्पोर्ट्स बेस्ड कैरियर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक, डीजे एक्सेट्रा। तो ये जो है ये टैलेंट बेस्ड है, ऑफ बीट है। इस तरह के कई नए कैरियर्स आए दिन आते रहते हैं। आप यदि आंख और कान खुले रखें तो और आपके टैलेंट्स हैं तो यू कैन एक्सप्लॉइट इट, यू कैन मेक इट ए कैरियर ऑप्शन, यू कैन बिकम ए फ्रीलांसर। तो ये ऑप्शंस भी आपको हमेशा अपने ओपन रखने चाहिए और यू शुड परस्यू योर ड्रीम्स। मैनेजमेंट, इट इज ए बिग ह्यूज फील्ड जो कि इनथिंग है: brand management, business development manager, business manager, event manager, export manager, human resource development manager, management consultant, market research executive, operations and logistic manager, retail manager, rural manager, sales and marketing manager, technical manager। तो ये मैनेजरियल जॉब्स हैं जो कि BBA MBA करने के बाद लोग और भी कई नई स्ट्रीम्स आई हैं इसमें जो कि शायद यहाँ लिस्टेड नहीं है। तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं एंड अच्छा कैरियर ग्रोथ आपको दे सकते हैं। तो अपने बेंड ऑफ माइंड के हिसाब से, अपने साइकोमेट्रिक एनालिसिस में जो आपको रिकमेंड किया है उसके हिसाब से आप अपना कैरियर ऑप्शन मैनेजमेंट में भी ढूंढ सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। मीडिया हाउसेज एंड कम्युनिकेशन, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसमें काफ़ी टीवी चैनल्स आ चुके हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, काफ़ी ऑनलाइन एडिटोरियल्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन पब्लिकेशंस आ रहे हैं। तो इसमें भी कई कैरियर ऑप्शंस हैं जैसे सिनेमेटोग्राफर, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, कॉपी राइटर, फिल्म एडिटिंग, जर्नलिस्ट, मीडिया प्लानर, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव, विजुअलाइजर। तो इस तरह के कई ऑप्शंस हैं जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी आप परस्यू कर सकते हैं, उसके लिए अपना कैरियर चॉइस बना सकते हैं। एट द एंड 4 P's ऑफ सक्सेस: पर्पस, पैशन, पॉसिबिलिटी एंड पावर। जैसा मैं पहले भी बताया था आपको कि जो आप विजुअलाइज करते हैं लाइफ में, आपके लाइफ में आप बनना चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज करते हैं कि यस आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, आई वांट टू बिकम ए मैनेजर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर। तो वो विजुअलाइजेशन जो करते हैं दैट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड पैशन टू फॉलो। और इसको यदि आप पावरफुली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ड्रीम्स देखना खराब नहीं होता। ड्रीम्स फुलफिल करना, ड्रीम्स को अचीव करना बहुत बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है आपको लाइफ में और बहुत अच्छा आपको लगता है। बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। एंड बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द करियर काउंसलिंग सेमिनार। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो एनी डे यू कैन कम डाउन टू कार्डिनल वॉरियर स्कूल विद जोश एंड होश एट माना रायपुर। और इस वेबिनार में बगल में आपको क्वेश्चन बॉक्स दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी दे करके आप कोई क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हैं जिसको मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज आंसर करने के लिए। और साइकोमेट्रिक टेस्ट आई रिकमेंड आप आइए, हमारे स्कूल को विजिट कीजिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट करके अपने कैरियर चॉइसेस के बारे में सही एडवाइस लीजिए। एंड उस कैरियर एडवाइस को जैसे मैंने बताया था ब्रीफली समझा देता हूँ कि अपने आप को समझिए, अपने आप को समझने के बाद पॉसिबल कैरियर ऑप्शंस के बारे में स्टडी कीजिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद आप रीवैल्यूएट कीजिए कि आपका डिसीजन सही है या गलत, और अकॉर्डिंगली आप आगे अपना कैरियर परस्यू कीजिए और इसकी प्लानिंग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोशिश कीजिए कि आप शुरू करें। And all the best, and I'll keep waiting for you. Anyone is most welcome to come down any day for the psychometric analysis and career counseling at Cardinal Warrior School with Josh and Hosh at Mana, Raipur. Thank you very much.